Okay, students, so the next topic is the telescope, and first we will see the refracting telescope. Here, what we are using is lenses, objective, and eyepiece, and because we are using lenses over here, we call it refracting telescope. Now, let us say that there is an object over here, any star or any other thing, any planet, and rays from that star or planet or the far object is coming like this. Now, as these rays are coming from very far objects, so these rays are considered to be parallel only, and let us say that they fall over here, making an angle alpha over here. So if this is alpha, then this will also be equal to alpha. Now let us say that okay, here what happens is कि ये क्योंकि parallel rays तो है, but these are not parallel to the principal axis. ये principal axis को parallel नहीं, ऐसे parallel दिख रही है, principal axis को parallel नहीं, इसलिए ये वाली रे जो यहाँ मीट कर रही है ये फोकस नहीं है, बल्कि अगर रेज पैरेलल आ रही है बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट ये पैरेलल है, तो उसकी जो इमेज बनेगी, ये इमेज जो यहाँ पर बन रही है, दैट इमेज इज फॉर्म्ड इन अ फोकल प्लेन. सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली द फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव. फोकस का ऑब्जेक्टिव का फोकस ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इमेज जो है वो फोकल प्लेन में बनी हुई है. So the distance from here to here we can consider it to be equal to the focus of the objective. ठीक है, ये फोकस नहीं है, ये फोकल प्लेन में इमेज बनी, ये यू कैन इमेज इन अ प्लेन पासिंग ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड अ फोकल प्लेन, और ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव. नाउ दिस इज द आई पीस, और अब ये जो इमेज यहाँ पर बनी है that will act as an object for the eyepiece, and if you want the image to be at infinity, then this must be exactly at the focus. So ये FE होगा. Now here let us say कि तो इस तरीके से हमारी इमेज बनने वाली है. दिस विल गो ओवर हियर एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, एंड यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम हियर. सो ये जो एंगल है, लेट अस कॉल इट बीटा, एंड देयरफॉर इफ वी टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन, then the formula for the magnification will be angle subtended by the image, that is I'm talking about the final image at the eye, divided by the angle subtended by the object, the eye. So clearly the angle subtended by the image over here is beta, as you can see, and the angle subtended by the object is alpha. तो अल्फा जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पे एंगल सबटेंड कर रहा है, हमने यहाँ पे लिखा है एट आई, बट देन यू नो द साइज ऑफ द टेलीस्कोप इज मच स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इसलिए ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है. सो वी कैन कंसिडर दिस एंगल विच इज अल्फा ओवर हियर एट द आई ऑल्सो. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा बाय यूजिंग 10 अल्फा एंड 10 बीटा, बिकॉज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल. वी कैन सिंपली राइट 10 बीटा as you can see over here as h by fe, and we can write 10 alpha as 10 alpha, as you can see from here in this triangle, we can see it is h by fo, and as you know that the angles are very small, so we can consider 10 beta as beta and 10 alpha as alpha. So what we get as magnification is beta by alpha, that is h by f.
so that is HH will get cancelled and we get FO by FE. So the formula for the magnification by a refracting telescope is FO by FE. Now here notice that if you want to increase the magnification of the telescope, to the value of FE, that is the focal length of the eyepiece, should be as small as possible and the focal length of the objective should be as large as possible. So this way you can find out the magnification for the refracting telescopes. Now there are certain disadvantages of using this refracting telescope, and it is for this reason we use reflecting telescopes also. Now what happens in case of reflecting telescopes is that instead of using lens as an objective we use mirror, concave mirror as an objective. तो एक एग्जांपल जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एक एग्जांपल है कैसेग्रेन टेलीस्कोप. Now what happens in this is कि यहाँ पर ये एक let us say एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है और यहाँ एक मिरर रखा गया है and this is a concave mirror. So this is a concave mirror which is kept over here. Now what happens is the rays from a distant object will come and strike this concave mirror. यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट इस तरीके से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और जहाँ पर वो मिलेगी वहाँ पर उसकी इमेज बनेगी. तो इस केस में ये हो सकता है कि वेयर वी हैव टू बी टू सी द इमेज, हमें कहाँ रहना पड़ेगा, हमारी आंखें कहाँ होनी चाहिए कि ओवर हियर, यहाँ पर होनी चाहिए. तो यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल केज बनाया जा सकता है जिसमें कि जो भी व्यूअर है वो देख सके. बट ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी लाइट तो ब्लॉक करेगा ही, बिकॉज जो लाइट यहाँ से आ रही है वो बीच में ब्लॉक हो जाएगी. एक दूसरा तरीका इसका ये भी है कि इंस्टेड ऑफ पर्सन सिटिंग ओवर हियर एंड व्यूइंग, हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं. सो वी पुट अ कॉन्वेक्स मिरर ओवर हियर. नाउ वॉट एवर रेज आर कमिंग ओवर हियर, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहाँ से वापस एक बार रिफ्लेक्ट होगी और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी एंड हियर वी आर पुटिंग एन आई पीस और वी कैन व्यू इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. सो डेट वुड बी मोर कन्वीनियंट. इस तरीके से हम कैसेग्रेन टेलीस्कोप को यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये ऑब्जेक्टिव है, पर इस बार ऑब्जेक्टिव में लेंस की जगह मिरर यूज़ किया गया है. तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं टेलीस्कोप के रिफ्रैक्टिंग और वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में नहीं है, वो हम देख लेते हैं. पहला तो ये है कि द डिसएडवांटेजेस और द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. नाउ पहला तो ये है कि बिकॉज लेंसेज आर यूज, यहाँ पे लेंस यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ वेरी बल्की, बहुत ही बल्की हो जाते हैं क्योंकि लेंस भारी होते हैं काफ़ी. दूसरा कि क्योंकि लेंस यूज़ किया जाता है तो वी हैव टू टेक लॉट ऑफ केयर, बिकॉज लेंस थोड़ा सा भी गिर जाए तो टूट जा सकता है बिल्कुल ही. तो दूसरी प्रॉब्लम जो है डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग. तीसरी प्रॉब्लम जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आती है वो है कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वी आर यूजिंग लेंस,
तो लेंस को जो है हम किसी भी साइड से खड़ा करने के लिए सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि लेंस की दोनों सरफेसेस इंपॉर्टेंट है। एक से रे आएगी और दूसरी से रे बाहर रिफ्रैक्ट होगी, जबकि मिरर्स में ऐसा नहीं होता। एक सरफेस पे तुम सपोर्ट दे सकते हो उसको, बिकॉज वो जो है एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, बाकी की दूसरी सरफेस जो है वो रफ सरफेस होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। सो हियर अगर हमें लेंसेज को एडजस्ट करना है, खड़ा करना है, तो हमें उसकी रिम के ऊपर ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि मिरर्स को हम एक साइड पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है सपोर्ट की, कि लेंस कैन नॉट बी सपोर्टेड ऑन द साइड्स, एनी ऑफ द साइड्स, इट कैन बी सपोर्टेड ओनली ऑन द रिम। फिर चौथी जो डिफिकल्टी और प्रॉब्लम होती है वो है क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन लेंस में होता है। नाउ क्रोमेटिक एबेरेशंस की वजह से कलर स्प्लिट हो जाता है। ये जो लेंसेज है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, उसमें रेज जो है कुछ रेज यहाँ से जाती है, कुछ रेज यहाँ से जाती है। तो जो रेज यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर जो कोन है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो स्लांट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रिज्म टाइप के एक्ट करता है और उसकी वजह से कलर्स की स्प्लिटिंग हो सकती है। तो यानी रेड, ब्लू, वायलेट सब जो है वो कलर स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इमेज जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देती, ब्लर दिखाई देती है। दैट इज़ क्रोमेटिक एबेरेशन। और दूसरा एक एबेरेशन भी है जो है स्फेरिकल एबेरेशन, वो भी लेंसेज में होता है। स्फेरिकल एबेरेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो पेरेक्सियल रेज है, जो यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती है, डेट इज़ पेरेक्सियल रेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती है डेट इज़ मार्जिनल रेज। सो ये पेरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज, यहाँ पर इफ यू सी ये सरफेस काफ़ी स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट जैसा दिखता है, जबकि यहाँ पर कोन बहुत ज़्यादा है। तो दोनों का फोकस अलग अलग हो जाता है। सो दोनों का फोकस अलग होने की वजह से व्हाट हैपन्स इज कि इमेज जो है वो हमारी ब्लर हो जाती है। ये स्फेरिकल एबेरेशन है। ऑफ कोर्स ये मिरर्स में भी हो सकता है, बट अगर हम पैराबोलिक मिरर यूज़ करें, पैराबोलिक, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। पैराबोलिक मिरर यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉन्केव मिरर लाइक दिस, वी कैन यूज़ दी पैराबोलिक मिरर्स विच आर लाइक दिस। तो यहाँ इस केस में यू कैन क्लियरली सी कि जो पैरेक्सियल है और जो मार्जिनल है वो बहुत ही नज़दीक रेज हो जाती है, एंड देयरफॉर जो स्फेरिकल एबेरेशन है उसको भी हम लिमिट या फिर अवॉइड कर सकते हैं। सो ये सारे जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के डिसएडवांटेजेस है जो रिफ्लेक्टिंग में नहीं होते, एंड दैट इज़ वाई मॉडर्न टेलीस्कोप्स आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव में मिरर यूज़ किया गया होता है।